Fact, the media does not respond to you if you come dressed in jeans and t-shirt. The moment you make the effort, suddenly everybody wants. Tell us something about your look tonight. What's your style statement for tonight? My style statement for tonight is very cool and chic. I hope you're getting the message because this is what it is. So which designer are you wearing? Several designers actually. The pants are Versace, the jacket is Christian Origier who designs for Ed Hardy, the watch is Diesel, the sunglasses are Jean-Paul Gaultier. So which designer do you normally choose in your wardrobe? Indian or Western? Both. Well, Western, to be very honest, I love Versace, although he is no more. May his spirit rest in peace. Amongst the Indians, I love Gudda, Rohit Bal, I love Tarun Tahiliani, and my favorite would be Shahab Durazi because his lines are very clean and quite elegant. And in Bollywood, who would you call a style statement person? Mr. Abhishek Bachchan. I think he's quite an understated and elegant gentleman, and what I admire about him is that anything that he wears, he carries off with a lot of elan. Mom, what about the Max Design Award? What about them? Max Design Award. Right. It's a very prestigious event and it's my pleasure to be here. So if you ask me to forecast who's going to win, I am clueless. मैं भविष्यवाणी में यकीन नहीं मानता, मैं वर्तमान में विश्वास करता हूँ. What are you looking forward to see? To meet a whole group of industry people, interact with them, because I've realized by being old school that the higher you network, the higher you network, the higher you raise your net worth. The more you network, the higher you raise your net worth. So I always come to events like this, interact with people from the industry in the hope that leads to other more sort of meaningful and everlasting relationships. So, ma'am, do you think that brands are really necessary to look fashionable? I never endorse brands to look fashionable, but हर इंसान की ज़िंदगी में एक मंजर ऐसा आता है कि उसको मतलब मजबूरी की वजह से वो करना पड़ता है. अगर मेरा बस चले तो मैं बड़े आराम से सरोजिनी नगर और फैशन स्ट्रीट और लिंकिंग रोड के कपड़े पहन के घूमूं, लेकिन आप लोग मुझे इतनी अहमियत नहीं देंगे. हकीकत बता रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट. द मीडिया डज नॉट रिस्पॉन्ड टू यू इफ यू कम ड्रेस्ड इन जीन्स एंड टी शर्ट. द मोमेंट यू मेक द एफर्ट, सडनली एवरीबडी वांट्स टू टेक पिक्चर्स विद यू. आप जैसे लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो. सो इट्स रियली योर कॉल. If I come in a pair of jeans and t-shirts and if you don't respond to me, then hey, who's responsible for this? This is not me, it's you. But same time you're doing a lot of things different like controversy. Recently you're doing BCCL cricket team, you know? BCL. Yes. Well, I'm associated. I'm the brand ambassador for BCL for a team called Chandigarh Cubs. And I'm very happy to be a part of them because some of my best friends are in the team and inshallah we'll rock. Are you watching Big Boss? Of course I'm watching Big Boss. I'm enjoying it. It's a great season. But मुझे लगता है कि अगर इमाम बिग बॉस में होता तो सबकी कुंडली जागरूक कर देता. रही बात बिग बॉस सीज़न 8 की, उन्होंने मुझे बुलाया ज़रूर है लेकिन बात पैसे पे आके अटकी है. और यहाँ मैं ऐलान करना चाहूँगा आप सभी के चैनल्स के माध्यम से कि अगर वो लोग एक कंटेस्टेंट को 75 लाख दे सकते हैं जिन्होंने कुछ योगदान नहीं किया गए साल के शो में, यानी कि रतन राजपूत, और इस साल अगर वो 40 लाख दे सकते हैं उपेंद्र पटेल को जिसने भी कोई योगदान नहीं किया, तो मेरे जैसे बंदे का तो कम से कम 10 करोड़ हक बनता है. आपको क्या लगता है? ये सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, आवाम से पूछना चाहता हूँ. आप अपनी राय मुझे ट्विटर पे बताएं. माय ट्विटर हैंडल इज @imam_a सिद्दीकी. इमाम, जो भी वहाँ पे होता है, जो भी कंट्रोवर्सी, जी ये सब स्क्रिप्ट है? बिल्कुल नहीं. जो सलमान भाई बोलते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है. उन कान में बताया जाता है कि क्या बोलना है, किसकी लेनी है, किसकी नहीं. लेकिन जो हम लोग करते हैं वो अपने आत्मविश्वास कायम रख के करते हैं. लेकिन जो झगड़े होते हैं, जो बातें होती हैं, जो कुछ होता है, हर जगह झगड़े होते हैं भाई साहब. आपकी ज़िंदगी में झगड़े नहीं होते हैं? जिस तरह से वहाँ पे दिखाया जाता है कि हर जगह झगड़े होते हैं, हर जगह नाइत्तेफाकी होती है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से अफसोस होता है कि आज हमारे समाज में उस चीज़ को मनोरंजन कहा जाता है. हम लोग घर में मतलब हर इंसान यही चाहता है कि उनकी छवि कायम रहे और पब्लिक उन्हें पसंद करे. तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसे एकदम मतलब बिंदास बेफिक्र बेशक रहते हैं. हर इंसान चाहता है कि उनकी छवि पॉजिटिव रहे. तो जब नेगेटिव ऐसे कोई इंटरेक्शंस होते हैं तो इंसान घबरा भी जाता है. बहुत सारे लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं. लेकिन अगर वही दिखाना पसंद करते हैं लोग, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? थैंक यू सो मच. प्लेजर. ये मैक्स डिज़ाइन अवार्ड हम लोगों ने उन छात्रों के लिए किया है जो डिज़ाइन के कैरियर में बिल्ड करना चाहते हैं इंडिया के प्रीमियम फैशन इंस्टीट्यूट से. मैक्स बेसिकली हम लोग वैल्यू फैशन रिटेल में इंडिया के लीडरशिप हैं, और अगर इस बिज़नेस में अगर हमें आगे रहना है तो डिज़ाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जबकि ग्राहकों को आजकल इंटरनेशनल फैशन जब दिख जाता है तो वो लोग इधर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई फैशनेबल प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिले. तो इसके लिए हमें हर समय आगे रहने के लिए हम लोगों ने ये डिज़ाइन अवार्ड में पार्टिसिपेट किया है. इस साल से इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, स्टूडेंट्स को इंकरेज भी कर रहे हैं. एंड जिस तरह से रिस्पॉन्स आया हुआ है ये हम बहुत ही वी आर वेरी हैप्पी एंड इसको आगे भी बिल्डअप करना चाहते हैं. तो हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो रही है?
कुल मिला के हम लोगों ने तकरीबन 24 इंस्टीट्यूट इस पहले फेज़ में किया है, क्योंकि इस बार थोड़ा समय थोड़ा कम था। अगले साल हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही इंस्टीट्यूट कवर करना चाहते हैं। एंड अभी फाइनली हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट अगर कुल मिलाकर 15 स्टूडेंट का किया है। रिस्पॉन्स हमारे पास तकरीबन 500 एंड ऑड स्टूडेंट्स के थे। उसमें शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आज 15 स्टूडेंट्स का हम लोगों के रैंप पर कौन चलने वाला, किसी से हम इन्वाइट किया आपने? नहीं, वैसे नहीं है। ये रैंप में जो है ये स्टूडेंट ही हैं, उनका ही रेंज को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उसमें से ही कई जो डिज़ाइन के बिज़नेस को अच्छी तरह से पहचानते हैं वो लोग ज्यूरी में रहेंगे। एंड उनके थ्रू बडिंग डिज़ाइनर्स को हम लोग इंकरेज करके उनको मंच में लाना चाहते हैं। ज्यूरी पे कौन कौन है? ज्यूरी पे कौन कौन? ज्यूरी में 5 लोग हैं, बट उसमें मसाबा हैं, मार्क रॉबिन्सन है, एंड नेहा दुपिया आने का है, एंड सोनम कपूर का भी एक्सपेक्टेड है कल के इसमें। सो द होल थिंग इज़ गोइंग टू बी जो फैशन के बिजनेस में कई उनके काफ़ी मशहूर हैं, ये लोग इस ज्यूरी में हैं। तो ये काफ़ी इंकरेजमेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि आगे भी पार्टिसिपेट करें।